السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل آزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، صاحب دعوت نبویہ والصلاۃ الحیدریہ ونسمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج رضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والہیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ۔ ایسے نے مل کے بلندر صلوات پڑھی خدا زہابہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ حاضرین کرام قدر، عاشقان رسول خدا، محبان آل با عزدران مظلوم کربلا، ہر سال کی طرح اس سال بھی اس تاریخی مجلس سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اکاڑا کے تمام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے، اور بالخصوص برادر محترم آل ذی وقار جناب سید کوثر رضوی صاحب کو مولا زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے، اللہ ان کے دسترخوان میں اضافہ فرمائے۔ اصغر بیٹے کے لیے، مراتب کے لیے، سب کے لیے دعا ہے، میرا مولا سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو میرے پیارے پیارے اہل سنت بھائی تشریف لائیں، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ شہادہ معصومین کا صدقہ ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ تمام شیعہ سنی اتحاد کرتے ہوئے ایک اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ ہم دنیا کو بتا سکے میرا نبی کل بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے۔ محمد۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مبارکہ الفاتحہ کی آخری 4 آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اب میں بالکل اس حوالے سے آپ کو زحمت نہیں دوں گا کہ کھڑے ہو جاؤ، بار بار نعرے لگاؤ۔ جہاں گفتگو آتی رہے گی انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھتی جائے گی۔ جیسا اگر آپ اوپر تشریف لائیں، آپ کو کافی زحمت ہو رہی ہے، میرے بھائی کو مولا آپ کو زندگی دے۔ تو آج کی اس تقریر کا عنوان ہے، جو کہ پورے پاکستان میں اس کا بہت زیادہ شور ہے، نوجوان یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی وسیلہ کہاں ہے؟ صرف اللہ ہے، بس کہو یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ میں کسی کو لڑانے نہیں آیا، ملانے آیا ہوں عالم اسلام کو، لیکن ہمارا شرعی حق ہے کہ ہم قرآن کی روح سے تمام مسلمان بھائیوں کے قریب آ کر بات کریں۔ میں سب سے پہلے گفتگو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یا رسول اللہ مدد اور یا علی مدد اللہ سمجھ کے نہیں کہتے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ قادر ہے، وہ مدرک ہے، وہ مومن ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ علیم ہے، وہ قدوس ہے۔ اپنے اللہ پہ بولا کرو، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ انبیاء کا خالق، ائمہ کا خالق، معصومین کا خالق، چرند کا خالق، فرد کا خالق، رزاق ہے، کریم ہے، طیب ہے، حی ہے، قیوم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ ہم مانگتے اللہ سے ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ کی مدد کو ہی علی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ پاک بی بی صاحب ایک بلند تو سلوات پڑھی یار بیٹے، آواز ذرا یہ درمیان سے بند نہ ہو۔ پاک بی بی آپ کو سامنے آئیے اللہ کے قرآن کی طرف چلے۔ آج لوگ کہتے ہیں، متوجہ ہے نا آپ، گرمی کی شدت تو حائل نہیں ہے،
क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, मैं मीडिया का खतीब हूँ, मुझे शिया भी सुनते हैं, सुन्नी भाई भी सुनते हैं, अहले हदीस भी सुनते हैं, देवबंदी भी सुनते हैं, ईसाई भी सुनते हैं। लिहाजा मेरा खिताब आलम इस्लाम से होता है, आपको लड़ाने नहीं आया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रहा ये सवाल कि गैरुल्लाह कहाँ है, नमाज में गैरुल्लाह का तस्वुर आए तो नमाज बातिल हो जाती है, नमाज में गैरुल्लाह का तस्वुर आए तो नमाज बातिल हो जाती है। और अगर आज मैं इस तकरीर में आलम इस्लाम सुन रहा है, अगर आपकी नमाज के दौरान 5 गैरुल्लाह दिखा दूं तो नहीं, गौर किया, अभी ठहरे आप। अगर मैं आपकी नमाज के दौरान 5 गैरुल्लाह दिखा दूं तो फिर जनाब का क्या ख्याल है? मेरे सुन्नी भाई नियत करते हैं मिसाल के तौर पर कि नमाज पढ़ता हूँ जोहर की 4 रकात नमाज पर, पीछे इमाम के मुंह किबला शरीफ तरफ, मुंह किबला शरीफ तरफ, पीछे इमाम के, तो मुसलमानों बताओ ये इमाम भी गैरुल्लाह है, ये काबा भी गैरुल्लाह है, तो तेरी तो नियत में तो गैरुल्लाह है, तू कैसे कहते हैं गैरुल्लाह? हाय 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 हाय, आप और नहीं हमारे इमाम खैरुल्लाह। ये खामोशी नहीं है, आएंगे नारे, लेकिन अभी गुफ्तगू का आगाज है, थोड़ी बेटो सिर आवाज बोले। इमाम गैरुल्लाह जिसे आप इमाम कहते हैं, हम उसे पेश नमाज कहते हैं। हमारे यहाँ इमाम 12 है, यार बोलो ना, हमारे इमाम 12 है, मासूम 14 है। दुनिया का इमाम कोई हमारा इमाम नहीं है, जो नुत्फे से पैदा हो वो इमाम नहीं होता। तो जो है ना, सदका खाने वाला इमाम नहीं होता, वालिदैन में कुफ्र रखने वाला इमाम नहीं होता। इमाम वो होता है जिसके लिए कुरान कहे कुल्ला शैना सैनहु फी इमाम मुबीन, हमने हर चीज है ऐसा कर दिया है इमाम मुबीन में। इमाम उसे नहीं कहते जो किसी से मसला पूछे, इमाम उसे कहते हैं जिस पे अल्लाह आदम से पहले दरूद भेजे। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, हैदरी। ये खामोशी नहीं तो जो है, इमाम उसे नहीं कहते जो दुनिया में आकर पैदा होकर लोगों के इमाम बने। साहब इमाम उसे कहते हैं जिस पे अल्लाह आदम की तखलीक से पहले दुरूद भेजता हो। हाय हाय, अल्लाह अकबर। एक बार अंदर सलवात पढ़ी यार मोहम्मद। ये खामोशी नहीं तो जो है, आपकी नीयत में 2 गैरुल्लाह शामिल, पेश नमाज गैरुल्लाह, काबा गैरुल्लाह। न काबा अल्लाह है, नहीं गौर किया, न पेश नमाज अल्लाह है। आप अल्लाह की नमाज में पेश हो। आगे चलते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये खामोशी ने तवज्जो है, जोनिए के हर बात पे एक तो करीब साहब मजलिसों का माहौल चूंकि जलसे बन गए हैं, जब तक आगे से 20-15 बंदे खड़े ना हो, लोग कहते हैं जी मजलिस ही नहीं हुई। बंदे खड़े होने का नाम मजलिस नहीं है, शऊर का नाम मजलिस है। आज मैं इस मिंबर का तारुफ करवा दूं मेरे बिरादर अजीज, इस मिंबर की किस्मत क्या है। ये स्टेज नहीं है, जब से ये स्टेज बना है इस पे अदाकार आ गए हैं। ये मिंबर रसूल है, और मिंबर रसूल का तारुफ क्या है, याद रखो मेरे मुसलमान भाइयों। इसे शियों की कुर्सी ना समझना, इसे शियों का मिंबर ना समझना। ये आदम मिंबर, आदम ये मिंबर जो है आदम की सिफत का है, नूह की निजाबत का है, इब्राहिम की खुल्लत का है, इस्माइल की सबाहत का है, ईसा की रूहानियत का है, मूसा की कामलियत का है, मुस्तफा की सदाकत का, सैयदा की तहारत का, अली की विलायत का, हसन के हुसन का, हुसैन की शहादत का, सजाद की इबादत का, बाकिर के इल्म का, जाफिर की सदाकत का, कासिम की तिहारत का, रजा के मौजों का, तकी की तगावत का, नकी की नखावत का, अस्करी की हैबत का है, और पारवे की हैबत का है। यह है इस मिंबर का तारुफ, यह है इस मिंबर, मौला को समझ, यह इस मिंबर का तारुफ। इसमें अंबिया की बात होती है, इसमें हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जाती है। हमारे मिंबरों से गाली नहीं दी जाती, हमारे मिंबरों से किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहा जाता। सुनो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो अली के शिया ही नहीं है जो नबी के सहाबा को न माने। हम बेतराज ना करो कि शिया सहाबा को नहीं मानते, मैं उसे शिया ही नहीं मानता जो नबी के सहाबा को न माने। हमसे सहाबा मनाओ, यजीद जैसा शराबी ना मनवाओ। हाय हाय हाय, तो जो है ना दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाम ने कल शजीद को सहाबी माना था,
ना हम क़यामत तक किसी यजीद को सहाबी मानेंगे, क्योंकि नबी का पाकीज़ा सहाबी कभी जालिम नहीं होता। साहब मैं जुमला कह रहा हूँ, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, ये खामोशी। आइए कुरान की तरफ चले गैरुल्लाह के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने आयत तिलावत की। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान है, रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम हम्द और सल्ला की जो आलमीन का रब है। यानी इसी आयत में अल्लाह भी है, रब भी है। पता नहीं को गौर कर रहा है कि नहीं? इसी आयत में वो अल्लाह भी है और इसी आयत में वो रब भी है। अल्लाह इसमें जात है, न जमा होता है, न तकसीम होता है, न मनफी होता है, न ज़र्ब होता है। वो अल्लाह है और वाहदहु ला शरीक है। अल्लाह इसमें जात है। रब के माने है पालने वाला, जो जहानों का पालने वाला है वो अल्लाह। आए हाय, ये खामोशी नहीं है। मेरी नौजवान नस्ल, मेरी गुफ्तगू में जज्बात नहीं है। आपको कुछ देने के लिए हाजिर हुआ हूं, ताकि उकाड़ा में आया हूं तो मेरी नौजवान नस्ल कुछ लेकर जाए। तमाम हम्द और सल्ला की जो आलमीन का रब है। अच्छा, आप नमाज में खड़े हो गए, वजू कर लिया, नियत कर ली, काबे की तरफ मुंह हो गया, पहली रकत शुरू हो गई, सूरह हम शुरू हो गई। अब आपके जहन में है कि गैरुल्लाह का तसव्वुर नमाज में आए तो नमाज बातिल है। अब जरा पढ़ मुल्ला नमाज। तमाम हम्द और सल्ला की जो आलमीन का रब है, अर्रहमानुर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। ऐ अल्लाह, मुझे चला उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने अपना इनाम नाजिल किया। तो नमाज अल्लाह की पढ़ना है, ये नमाज में लोग कहां से आ गए? आय हाय हाय, ये लोग अल्लाह है या गैरुल्लाह? आय हाय हाय, नहीं गौर किया। अभी तो आप कह रहे थे नमाज में गैरुल्लाह का तस्वुर आए। बेटा थोड़ी आवाज जरा खोले, इको जरा बढ़ा। नमाज में गैरुल्लाह का तस्वुर आए तो नमाज बातिल है। तो ये नमाज में लोग कहां से आ गए? लोग अल्लाह नहीं है, लोग गैरुल्लाह है। ये बात में बहस करना कि ये सहाबा का रास्ता है, वलियों का रास्ता है, या आले मोहम्मद का रास्ता है, बस इतना याद रखना। मैंने समय टीवी पे जुमला कहा था, बिलाल कुतुब साहब ने पूछा था कि क़यामत के पास दुआ में वसीला किन लोगों का लेना चाहिए? मैंने कहा अल्लाह की बारगाह में वसीला उनको दो जो खुद गुनाह नहीं करते। हाय 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 हाय, कोई है बोलने वाला? हाय हाय हाय, नहीं और किया। अल्लाह की बारगाह में वसीला उनका दो, नहीं गौर किया, जो खुद गुनहगार ना हो। वरना अगर खुद गुनहगार होगा तो गुनहगार की सिफारिश कैसे करेगा? गुनहगार के लिए दुआ कैसे करेगा? वो गुनाहगार ही कह देगा सरकार आप तो मेरी तरह गुनाहगार हैं, आपको किसने हक दिया कि मेरे लिए दुआ करो? तो फिर पूरी कायनात का औकारा के अकबर चौक पे क़यामत पास हैदरी चैलेंज कर रहा है। भारत में बोलना औरतों का काम है, मर्दों का नहीं। मां ने बेटे नहीं चला जो मेरे चैलेंज का जवाब दे। मुसलमानों, इसका तर्जमा सहाबा करो या वली करो, लेकिन याद रखना युरीदुल्लाह की आयत सौदा के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। हाय हाय हाय, कोई है बोलने वाला? आहा आहा, बोला तो सामने रखे। नारा आपने लगाना होता है, मेरे साथ कोई नारे वाला नहीं आता, ना मैं कोई किराए का लोग लाता हूं। ऐसे नहीं दोनों हाथ जी बिस्मिल्लाह बेटे। कुरान ने आगे बढ़कर आवाज दी, बिस्मिल्लाह बेटा, गर्मी ज्यादा है। लगेगा उकारे वालों ने जवाब नारे का नाम दिया। अच्छा जी, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। कन्या जाग के, आहा, कन्या खोल के, हलाली जी हरामी जी पहचान करके मिलके नारे हैदरी
साहब अभी मेरे इस बच्चे ने ये जुमला कहा है तो कुछ चेहरे परेशान हो गए कि शायद ये इसका अपना जुमला है। मुझे कसम है ज़ारात की चादर की, मुझे कसम है खाना काबा की, मुझे कसम है अल्लाह की नमाज की, मुझे कसम है रोज़ों की, मुझे कसम है हज की, मुझे कसम है ज़कात की, मुझे 12 की कसम, 14 की कसम, आदम की कसम, नूह की कसम, याह्या की कसम, अनोश की कसम, यूसुफ की कसम, याकूब की कसम, सलमान की कसम, ईसा की कसम, मूसा की कसम, नबी की कसम, अली की कसम, सहाबा की कसम, ताबा की कसम, गौसों की कसम, कलंदों की कसम, कुतुब की कसम, मला की कसम, मुझे कसम है 1,24,000 अंबिया मसबत की इज्जत की। मेरे नबी ने कहा था यारी तुझसे मोहब्बत वो करेगा जो बल्दियत में ला शरीक हुआ। आए है जुमला कह दिया है। आहा आहा आहा, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी जुबान के साथ दिल बोला, जमीन बोली समन बोला, नारा हैदरी। इतनी बदल सलवात हुई है ना, क्या कहना। मेरा बोला आपको समझ बेदार हो गए आप। मैंने बड़े खूबसूरत तरीके से जुमला पहुंचा दिया। मेरे नबी ने फरमाया यानी ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा वला युज़्बुका इल्ला खबीसुल विलादा। अली तुझसे मोहब्बत वो करेगा जिसकी विलादत में तहारत होगी। अली तुझसे बोझ वो रखेगा जिसकी विलादत में खबासत होगी। तो हमारा कोई नुकसान नहीं होता। अल्लाह का नाम लेने से पता नहीं चलता किसका शजरा ठीक है किसका गलत है। किसी और का नाम लेने से पता नहीं चलता शजरा कामिल है कि नहीं। पूरी कायनात में अबू तालिब का बेटा अली वलीउल्लाह है जिसका नाम आते ही चेहरा खिल भी जाता है, चेहरा खुल भी जाता है। आहा आप जिए सलामत है। बेटा ये कैमरा भी घुमा लो ना, यारबानी की इतनी मेहनत है और जो है आपकी जनाब सईद आपको जिंदगी दे। मेरे हबीब अब आप नमाज में खड़े हो गए, ये खामोशी नहीं तवज्जो है, आप हालत नमाज में हैं। ए अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पर कायम रख। ये हमारा तर्जमा, भाइयों का क्या तर्जमा है? या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। चले कोई बात नहीं, जिसने देख लिया वो कायम रहने की दुआ करे। मैंने जुमला कह दिया है, जिसने देख लिया वो कायम रहने की दुआ करे, जिसने नहीं देखा वो सीधे रास्ते की दुआ करे। तो भाई आप नमाज में खड़े हो गए, काबा गैरुल्लाह, ये खामोशी नहीं तवज्जो है, पेश नमाज गैरुल्लाह, जिनका रास्ता मांग रहे हो वो गैरुल्लाह। कितने गैरुल्लाह हो गए? बोलो सारे 3। और कोई ऐसा बच्चा भी नहीं है जिसे दुआ ना आती हो। आप नमाज में कहते हो ना अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में रहम किया। तो नमाज में बाप आए तो जायज, अबू तुराब आए तो पता नहीं को गौर करे कि नहीं। हाय 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 हाय, नारा हैदरी। कमाल करें आप, इसी बाप का नाम नमाज में आ जाए। बाप का तस्वुर आया कि नहीं? अच्छा, जब आप लोगों का रास्ता मांग रहे हैं, ए अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पर कायम रख, थक तो नहीं गए? जिन पर तूने अपना, बोलो सारे, जिन पर तूने अपना इनाम नाजिल किया और तू उनसे कभी नाराज नहीं हुआ। ये जो नाके लगाते हैं ना दरमियान में ऐसा मैंने जुमला कह दिया, ये जो तर्जमे में नाके लगाते हैं ना मौलवी, ये नाके वाके कहीं नहीं है, ये सीधी सीधी बात है, नहीं गौर किया। ऐ अल्लाह उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम नाजिल किया, नाके कहीं नहीं है। आयत को तोड़ो ना, आयत को जोड़ो, नहीं गौर किया। नाके किसी लफ्ज का तर्जमा है ही नहीं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन। वलद्दालीन नहीं है, वलद्दालीन है। ऐ अल्लाह उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम नाजिल किया और तू उनसे कभी नाराज नहीं हुआ। तो मेरे प्यारे डियर स्वीट मुस्लिम ब्रदर, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको कभी याद नहीं आया मैं किन लोगों का रास्ता मांग रहा हूँ? आए हाय हाय हाय, किन लोगों का रास्ता मांग रहा हूँ? मैंने
जुमला बहुत बारीक कह रहा है, कच्चे स्टेशनों से शालीमार की तरह गुजर जाऊंगा, समझ उसे आएगी जो हाजिर बैठा हुआ है। तो फिर मानना पड़ेगा तू नमाज में उसका रास्ता नहीं मांग रहा जिसने एक मर्तबा भी जिंदगी में शराब पिया। हाय हाय हाय, तू उसका रास्ता नहीं मांग रहा जो एक दिन भी काफिर रहा। हाय हाय, अल्लाह अकबर, पता नहीं कुछ समझ सका कि नहीं। तू नमाज में उसका रास्ता नहीं मांग रहा जो एक दिन माज़अल्लाह शराब पीता रहा, ना नमाज में उसका रास्ता मांग रहा है जो एक दिन काफिर रहा। क्योंकि तुम्हारे पास एग्जाम्पल नहीं है। जब क़िबला शाह साहब कोई नई सोसाइटी बनाता है तो उससे पहले मॉडल रूम बनाता है, मॉडल हाउस बनाता है। जी 5 मरले का मकान इस सोसाइटी में इतने का है। वो कहते हैं जनाब मकान होगा कैसे? वो अपने बेल देते हैं, उसका पियन आता है, कहते हैं साहब को पहले मॉडल हाउस दिखाओ ताकि इससे अंदाजा हो जाए असल कैसा होगा। आए खाने और किया, पहले मॉडल हाउस देखते हो फिर तयन करते हो असल मकान कैसा होगा। तो मेरी जान, जब आपने लोगों का रास्ता मांगा है तो फिर मानना पड़ेगा ये लोग ऐसे हैं जिन पर अल्लाह कभी नाराज नहीं हुआ। अब अल्लाह उन पे नाराज नहीं होता जिसने ना झूठ बोला हो, ना जुल्म किया हो, ना शराब पी हो, ना कुफ्र किया हो, ना नफा किया हो। तो मेरी जान, तू शिया शिया रहे, सुन्नी सुन्नी रहे, देवबंदी देवबंदी रहे, अहले हदीस है, सबके मसले का एहतराम करता हूँ, सबके इमामों का एहतराम करता हूँ, लेकिन ठेके की चौक पर सिर्फ शिया ने हैदर करा। कह सकते हैं हमारे 14 के 14 मासूम है और हमारे इमाम इतने पाक है कि पहला भी काबे से आया था, आखिरी भी काबे से आएगा। हाय 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 हाय, क्या कहने मौला आपको जिंदगी दी। जनाब शहीद आपको सामने एक बलंदर सलवात पढ़ी यार मोहम्मद पर। बात खुलती जा रही है, बात खुलती जा रही है। सूरह मुबारका आल इमरान की एक आयत है, इन्नल्लज़ीना सुम्मा आमनु सुम्मा कफरू। आयत आराम से सुनो। तहकीक सुम्मा आमनु ईमान लाए, सुम्मा कफरू फिर काफिर हो गए, सुम्मा आमनु फिर ईमान लाए। यार कोई तो बैठा है, कुरान पढ़ो। सुम्मा कफरू फिर काफिर हो गए, सुम्मा ज़ादन कफरू, और फिर इतने काफिर हुए कि कुफ्र में इजाफा होता चला गया। तो ढूंढो वो कौन है जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गया। हाय 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 हाय, कोई है बोलने वाला तो कुरान ने बताया, कुरान ने बताया। सूरह हुजरात में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मेरे नबी की आवाज से, ये खामोशी नहीं है, मेरे नबी की आवाज से आवाज बुलंद ना करना, आवाज बुलंद ना करना, वरना तुम्हारे आमाल हब्त हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पता चला जो नबी की आवाज से आवाज बुलंद करे वो ईमान लाने के बाद काफिर हो गया। पता नहीं को गौर करा है कि नहीं। फिर सूरह आल इमरान में अल्लाह ने फरमाया, कैफ यादिल्लाह कौमन कफरू बाद ईमानिहिम, खुदा कैसे हिदायत करे इन काफिरों को जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गए। सूरह आल इमरान में अल्लाह ने फरमाया, मेरे हबीब जो तुम्हें तन्हा छोड़कर भाग जाए, खुदा फिर काफिरों को दोस्त नहीं रखता। हाय हाय हाय, कोई है बोलने वाला? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। ये सब कुरान है, ये सारा कुरान है जो मैं आपके सामने तिलावत कर रहा हूं। सुम्मा आमनु सुम्मा काफरू, ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हो गए। नहीं गौर किया। सुम्मा आमनु फिर ईमान ले आए, फिर कुफारा दिया। बचाने वालों ने बड़ा बचाया, कुफारा दे दिया, भेड़ बकरियां दे दी, इतने ऊंट ज़िबा कर दिए, अल्लाह ने माफ कर दिया होगा। यानी पता चला ये वो लोग हैं जिन पे अल्लाह कभी राजी होता है, कभी नाराज होता है। 14 वो हैं जिन पे अल्लाह कभी नाराज नहीं हुआ। बोलो यार, बोलो सारे। और फिर अल्लाह ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया, थक गए हो तो मैं छोड़ देता हूं।
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ احسان ہے، اور تم میری کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ اب تک میں نے پوری مجلس میں شاہ صاحب کے بلا 4 باتیں کی۔ غیر اللہ نماز میں کتنے ہو گئے؟ پیش نماز غیر اللہ، کعبہ غیر اللہ، لوگوں کا راستہ غیر اللہ، ماں باپ غیر اللہ۔ اور جس مولوی کو زیادہ جوش آتا ہے نا، میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے۔ میں نے کبھی اپیل نہیں کی لیکن اپنے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، یوٹیوب چینل کرامت عباس آفیشل، شاہ جی مجھے آج بتا رہے تھے 4 دن پہلے سما ٹی وی پر الحمدللہ ایک بہت بڑے علمی خاندان کے چشم و چراغ، میں ادب سے نام لیتا ہوں، جناب مولانا احتشام علیہ ظہیر صاحب بھی میرے ساتھ تھے، مفتی کبیر صاحب بھی میرے ساتھ تھے، اور ایک اور بھی صاحب موجود تھے۔ تو وہاں یہ ٹاپک چھڑا کہ جی یا علی مدد کہنا شرک ہے۔ تو میں نے کہا جناب علی، اگر یا علی مدد کہنا شرک ہوتا تو اللہ اپنے ہوتے ہوئے نبی کو خیبر میں کبھی نہ کہتا کہو نادی علی۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے جس بندے کے ہاتھ نیچے رہ گئے وہ شاید علی کا شیعہ ہو؟ کیوں نبی کو اللہ نے کہا تھا میرے حبیب کہ نادی علی مظہر نہ جائے تجدہ اللہ کا فی النوائے کل ہم مغم شاہین چلیل بے عظمت کا یا اللہ ہو، بے نبوت کا یا محمد، بے ولایت کا یا علی ہو، یا علی ہو، یا علی ہو۔ کیوں کہا؟ ہائے ہائے ہائے، سنے 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 سنے۔ اور بڑے صغیر کے حصہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرے ایک بھی جملہ غیر ذمہ دارانہ ہو تو مجھے پاکستان کی معزز عدالت میں بلا لینا۔ بڑے صغیر کے 70 نامور اولیاء اللہ ہیں جن کا وظیفہ نادی علی تھا۔ پتہ نہیں کوئی غور کرے کہ نہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی کا وظیفہ نادی علی، سرکار کلندر پاک کا وظیفہ نادی علی، بری شاہ لطیف کا وظیفہ نادی علی، بابا فرید شکر کن کا وظیفہ نادی علی، شیر محمد شاہ کا وظیفہ نادی علی، سچل سرکار کا وظیفہ نادی علی، پھٹ شاہ کا وظیفہ نادی علی، کیونکہ فرید جانتے ہیں جب تک علی نہ کرو ولی بنتا ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا، رکے رہنا۔ بات میں آگے بڑھا رہا ہوں اور وہ بھی قرآن کی روح سے۔ اللہ نے سورہ رحمان میں کیا ارشاد فرمایا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ میں نے ایک دفعہ بھی داد کے لیے زبردستی کی ہے، کیوں اصغر بیٹا ماشاءاللہ داد مل رہی ہے تو مجھے ضرورت کیا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے بڑے آرام سے پڑھو، بڑے آرام سے سنو، جب نتیجہ دوں گا پھر آپ اپنے اسی جوش ولایت سے سن لینا۔ یہ ہم ہی ہیں جو 58 سال کی عمر میں 1.5 گھنٹہ پڑھ جاتے ہیں، نہیں تو سائیں ایک دا ایک وین ڈوں دا ڈوں بند یالی یالی۔ نہیں نہیں نہیں، یہ قوم کچھ لینے آتی ہے، اس قوم کو کچھ دینا چاہیے۔ حضور جملہ میں آپ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں، اللہ میرے بھائی رانا عظیم افتخار کے درجات میں بلندی فرمائے۔ ایک میرے بیٹے سنی شاہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ باجی کے صاحبزادے کو اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ بڑی دعاؤں کا وقت ہے، اس لیے میں دعا مانگ رہا ہوں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جھگڑو نہیں، لڑو نہیں، شیعہ شیعہ رہے، سنی سنی رہے، بس ان کو مانو جن کے ماننے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جن کے ماننے کے بغیر دیکھنا گزارا نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں ہے، جھگڑا آل محمد اور صحابہ کا نہیں ہے۔ ہاتھ چھوڑ کے کہہ رہا ہوں، تجھے اللہ کا واسطہ صحابہ کا آل محمد سے کبھی موازنہ نہ کرنا۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو کلمہ پڑھنے والا ہو، آل محمد اسے کہتے ہیں جو کلمہ پڑھانے والا ہو۔ صدقہ صحابہ پر حلال ہے، آل محمد پہ حرام ہے۔ تو جو ہے نا، ہائے 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 ہائے، یہ فرق ہے، یہ آپ کو رکھنا پڑے گا۔ آقا غلام اور امام کا فرق رہنا چاہیے، بات ختم۔ نعمت کیا ہے؟ جن پر تو نے، یہ خاموشی نہیں، ابھی میں نے خطابت نہیں کی، جن پر تو نے، بیٹا معذرت چاہتا ہوں، یہ شیڈ آگے کی دفعہ کافی ہے، جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا ہے۔ اب انعام کیا ہے؟ نعمت۔ اب ذرا مولوی سے پوچھ لیتے ہیں، جناب مولوی صاحب یہ نعمت کسے کہتے ہیں؟ اب مولوی 14 کے حسد میں تربوز نعمت، نہیں میں نے کبھی مزاحیہ باتیں نہیں ممبر سے کی، تربوز نعمت، خربوزہ نعمت، روٹی نعمت،
हलवा बहुत बड़ी नेमत, खीर उससे बड़ी नेमत, और अगर छोटा हो तो उससे बड़ी नेमत। भाई ये नेमतें हैं, मैं कब कह रहा हूं ये नेमतें नहीं, मगर ये नेमतें हैं जुज़वी। अल्लाह ने जो आले मोहम्मद मेरे रसूल पर नेमतें नाजिल की हैं वो तरबूज नहीं है, वो खाना नहीं है। और फिर कुरान बतहा वल्लैल सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा कला, अभी मुझे कसम है तेरी की, मुझे कसम है रात की, तेरा अल्लाह तुझ पर कभी नाराज नहीं हुआ और इतनी नेमतें देगा तुझे, इतनी नेमतें देगा तू मुझ पे राजी हो जाएगा। मुसलमानों वो नेमतें फल नहीं है, वो नेमतें पानी नहीं है, वो नेमतें मुसलमानों क्या है। और सुना मेरे नबी की हदीस है कि अल्लाह नेमत मोमिन पे नाजिल करता है तो पानी तो हिंदू भी पीता है, हाय हाय हाय, फल तो ईसाई भी खाता है। पता नहीं किसी ने गौर किया है कि नहीं। शाह साहब, अल्लाह का नबी फरमा रहा है कि अल्लाह नेमत नाजिल करता है मोमिन पर, तो ये खाना तो हिंदू भी खाता है, ये पानी तो ईसाई भी पीता है, ये गैर मुस्लिम भी पीते हैं, चांद परस्त भी पीते हैं, सितारा परस्त भी पीते हैं। फिर वो कौन सी नेमतें हैं जिनका अल्लाह ने नबी से वादा किया। अब तक मैंने दिया आपको रेस्ट, अब मैंने आपको रेस्ट नहीं करने देना। इंशाअल्लाह ताला मेरी नौजवान नस्ल घर तक बोलती ना जाए तो मैं बीबी का नौकर ही हूं। तो फिर उकारा की तारीखी बारगाह में क़यामत बाशेदरी हजारों की मौजूदगी में चैलेंज कर रहे मुसलमानों, दुनिया की अदालत से लेकर अल्लाह की अदालत तक क़यामत बाशेदरी अपने जुमलों का जिम्मेदार है। रख मुल्ला के सर पे कुरान, वो कौन सी नेमत थी जिसका ऐलान होने के बाद अल्लाह ने कहा कुरान भी मुकम्मिल हो गया, दीन भी मुकम्मिल हो। आय हाय हाय, कोई है बोलने वाला? आय हाय आय हाय आय हाय, बोलो ना मेरे बच्चों, चैलेंज दिया मुसलमानों तुझे। किताबें आपकी, दावा क़यामत बाशेदरी का, सही बुखारी 1, सही मुस्लिम 2, सनन इब्न दाऊद 3, जामे तिर्मिज़ी 4, सनन नसाई 5, कंजुल अमाल 6, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी 7, अल्लामा मौदूदी की तफसीर 8, तफसीर इब्ने कसीर 9, तफसीर इब्ने गंगोही 10 किताबों का हवाला देकर क़यामत बाशेदरी मौजूदा इस दौर में मौलाना ताहिरुल कादरी ने और अब मौलाना तारिक जमील साहब ने जब अपनी मस्जिद में कहा था कि मन कुंत मौला हो फाज़ारी मौला, मौलवियों के मुंह बिगड़े तो तारिक जमील ने कहा याद रखो अली से मुराद, मौला से मुराद दोस्त नहीं है, जैसा नबी आका है वैसा अली आका। आय हाय, उसे भी कह दिया शिया। जो अली की बात करे वो शिया। नहीं गौर किया, नहीं गौर किया आपने। हमने जिन पर अपनी नेमतें नाजिल की, ये खामोशी नहीं है। अब अगर मेरे हसीन में मजमा नहीं आपको कह रहा, आजादार कह रहा हूं, मेरे छोटे बच्चे अगर मेरा साथ दे तो मैं जुमला आपकी नजर खा रहा हूं। इन बच्चों को झिड़कियां ना दिया करो, ये मेरा मुस्तकबिल है, कल इन्हीं में क़यामत अब्बास है, इन्हीं में नासिर अब्बास है। मगर आपको सामने रखे, हम तो ढलते हुए सूरज हैं, ये जवानी के चढ़ते हुए बाफारे हैं। मगर आपको सामने रखे, बताओ मुसलमानों वो कौन सी नेमतें हैं जो अल्लाह ने नबी पे नाजिल की और नबी राजी हो गया। हाय हाय, अल्लाह अकबर। कभी अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका की इज्जत, मेरे आका की हुर्मत, सुनो शियो, जब तक क़यामत बाशेदरी जिंदा है, मेरे जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी है, मेरी आखिरी सांस तक गवाह बन जाना। जब तक क़यामत बाशेदरी जिंदा है वो अपने नबी की वकालत करता रहेगा, वो अपने रसूल की वकालत करता रहेगा। आज मैं अपने नबी के नारे लगवा रहा हूं, मेरा साथ देना। सैयदी मुर्शदी, ऊंचा गाओ, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। जिनका हाथ खड़ा न हुआ वो दीन वालों नहीं है। सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, अभी ऊंचा नहीं बोले, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो न इसके मुस्तफा। एक बार अंतर सलवात पढ़िए मोहम्मद पर। अब मेरे अकीदे में कोई शक ना करे,
रजी साहब सुनो, मैं शिया अकीदा पेश कर रहा हूं, इसना अशरी अकीदा। लोग हम पे इल्जाम लगाते हैं शिया अली को नबी से बढ़ाते हैं। मेरे जवानों में आने अब तक आपसे नारा नहीं मांगा, लेकिन जिस मेरे जवान को समझ आए उसकी आवाज गदीर तक जानी चाहिए। आओ पूरे उकाड़ा की मस्जिदों के कुरान मेरे सर पे रखो। जो अली को नबी से बड़ा है, जो अली को नबी से बड़ा है वो काफिर, जो अली को नबी से हटा है वो मुनाफिक है। कोई है बोलने वाला? आहा आहा, अब नारा सुनाना। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैदरी, पीछे से एक नारा है, पीछे से कोई जवान नारा लगाए, पता चले। बात मुकम्मल कर रहा हूं, कौन सी है वो नेमतें जो मेरे रसूल पे नाजिल हुई? आओ फिर कुरान। थक गया हो तो मैं छोड़ देता हूं। ईमान से बताओ, आपको सुन के इतनी गर्मी लग रही है, मुझे इतने गरज के भी गर्मी नहीं लग रहा है। जब मौसमों को नाकाम कर दे उसे अली कहते हैं। हाय हाय हाय, मुझे मौलवी इस्माइल साहब का एक जुमला याद आ गया। अल्लाह ताला उनके दर्जात पे बुलंदी फरमाए। मेरे प्यारे बेटा, मौलवी इस्माइल साहब सुनाते हैं बात, कहते एक मलंग और एक मुल्ला दोनों तांगे पे जा रहे थे। नहीं गौर किया? वैसे क्या क्या मैचिंग है, एक ही सीट पे मलंग, एक ही सीट पे मुल्ला। आगे छोटा सा खड्डा आ गया। जब खड्डा आया तो मलंग ने कहा या अली मदद। मुल्ला देख के कहता है, मौलवी देख के कहता है, मलंग साहब इतना बड़ा खड्डा नहीं था जितना बड़ा तूने नारा लगाया है। मलंग मुस्कुरा कर कहते, खड्डा बहाना था, इस नारे के जरिए तेरे बाप का तो पता क्या। हाय हाय, तो जो है ना मौला तुम्हें शामिल रखे। नारा हैदरी। क्या कहने उकाड़ा वालों के, क्या कहने। आप जिए सलामत हैं, आप जिए, जियो मेरा बेटा, जियो जियो। हैदरी। मेरा बेटा नारा लगवाना, खड़े होकर वीडियो बना भी मेरे बच्चे का। आहा, मेरा मौला आपको शामिल रखे। अभी आपने देखा एक 8 या 9 बरस का बच्चा है जिसके खेलने की उम्र है। ये क्रिकेट नहीं खेला, ये पॉप गेम नहीं खेला, ये वीडियो गेम नहीं खेला, ये वीडियो नहीं देख रहा, ये कलर नहीं देख रहा। ये अली की मजलिस में आगे बैठकर अली बादशाह का नारा लगाएगा, दुनिया को बता रहा है अली को मानने के लिए न शिया होना जरूरी, न सुन्नी होना जरूरी। क़यामत बास का ये जुमला जब तक जिंदा है मैसेज जिंदा रहेगा। अली को मानने के लिए माने को नहीं चाहिए, बापे को। हाय हाय, तो जो है ना, बस और कोई कंसेप्ट नहीं। जनाब शहीद आपको साथ बिल्कुल मेरे बेटे जीते रहे। बस आखिरी जुमला, बहुत पढ़ गया मैं। वो नेमतें कौन सी हैं? आइए फिर कुरान। मैंने कोई बात भी रिजवी साहब अल्लाह के कुरान से हट के नहीं की। असगर बेटा, बाबा बूढ़ा नहीं हुआ अभी। इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। हबीब मेरे रास्ते में नमाज कायम कर। नहीं गौर किया? कुर्बानी देता रहे। जो तुझे लावारिस कह रहे हैं ना, हाय हाय, मैं उनकी नस्लों के निशान मिटा दूंगा। और मेरे हबीब, हमने तुम्हें कौसर अता की। अब नबी पे सबसे बड़ी नेमत है बतूल। हाय 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 हाय, नहीं गौर किया? एक ही वक्त में रहमत भी नेमत भी। ये खामोशी नहीं। अब तक आपने बड़ी दुआएं दी। मैं उकाड़ा वालों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। मैं जब भी आता हूँ आप मुझे बड़ी मोहब्बतें देते हैं। अब तो मुझे माशाल्लाह ये चेहरे याद हो गए जो 12-12, 13-13 साल से मुझे सुन रहे हैं। पाक बीबी आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन के जाकिर से आप प्यार करते हैं, बीबी आपको सलामत रखे। मगर एक जुमला मुझे कहने दीजिए बड़ी मोहब्बत के साथ। अल्लाह ने नेमतें नाजिल की मेरे नबी पर। वो नेमतें कौन सी हैं? वो सूरह रहमान ने बताए। मर्दों में इस्लाम पर एहसान किया जनाब अबू तालिब ने। भाई जिनका यकीन है वो बोलिएगा। मर्दों में से अल्लाह पर एहसान किया जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने दीन के लिए।
ख़वातीन में इस्लाम पे एहसान किया। बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए। आपको याद है A+ पर मैं पूरा महीना रहा हूँ और मेरी कौम ने सुना है, और मैंने A+ पे जुमला कहा था कि अगर इस्लाम में अबू तालिब की आल और खतीजा का माल ना हो तो इस्लाम मुकम्मल ही नहीं होता। आय हाय मेरे बच्चों, अगर पूछे भाई व्हाट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ इस्लाम, क्या इस्लाम की सादा तारीफ है, उसे कहना सादा ना पूछ। व्हाट इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की मुकम्मल तारीफ क्या है। खतीजा का माल, अबू तालिब अलैहिस्सलाम की आल। अब कुरान फरमा अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। इन दोनों जातों ने अल्लाह पे एहसान किया मेरे प्यारे भाई। तो जो है जनाब अबू तालिब ने, जनाब बीबी खतीजतुल कुबरा ने, अल्लाह ने दोनों को इनाम क्या दिया। अबू तालिब को साकी कौसर अता किया, अब आपकी मर्जी है बोले ना बोले। जनाब अबू तालिब को साकी कौसर अदा किया, जनाब खतीजा को कौसर अता की। फिर साकी कौसर और कौसर का निकाह पढ़ाकर अल्लाह ने सूरह रहमान में ऐलान किया इस्मत के दो दरिया मिलते हैं, हदों से तजावुज नहीं करते, इनसे याकूत और मरजान आते हैं। याकूत सुर्ख होता है, मरजान सब्ज होता है, सब्ज हसन का निशान, सुर्ख हुसैन का। हाय हाय ये नेमतें हैं। हाय 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 सूरह रहमान नेमत है अल्लाह के रसूल पर। बस मैंने गुफ्तगू मुकम्मल की। तो मेरी जान अब आप जरा बता दें, आखिरी जुमला है ताकि उन्वान मुकम्मल हो जाए। आप कहते कुल कफा बिल्ला, शाह साहब कुल कफा बिल्ला, बस अल्लाह काफी है। अच्छा अल्लाह काफी है, हाँ। अल्लाह के आगे जो कहोगे वो शिर्क है, हाँ जी शिर्क। अच्छा तो फिर एक मर्दाना शराफत का मुजाहरा करते हैं। मजहबी शराफत अभी बाद में है, पहले एक मर्दाना शराफत है ना। तूने कहा है सिर्फ अल्लाह को मानना है, तो कल से कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, बस बोलो यार, सारे बोलो, जिन्हें समझ आई है बोलो, और सारे समझदार बैठो। कल से बाप का बेटा है तो पढ़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, बस। अभी मैंने अली वलीउल्लाह की बात ही नहीं की, मैंने भाई अली वलीउल्लाह की भी बात ही नहीं की। तू कहते कुल कफा बिल्ला, बस दुकानदारों ने लगाया हुआ है ना बेटा, हटकाओ ना दस। दुकानदारों ने वो स्टिकर लगाए होते हैं कुल कफा बिल्ला, मेरे लिए अल्लाह काफी है। अबे खाइन पिछली आयत तो पढ़, क्यों कौन कह रहा है मेरे लिए अल्लाह काफी है। तू अपना चेहरा शीशे पर देखे बगैर कह देता है मेरे लिए अल्लाह काफी है। ये मेरे नबी ने फरमाया था। नहीं 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 नहीं, नहीं। अभी रुक जा। जब मक्का के लोगों ने, अबू जहलों ने, अबू लहबों ने, उतैबों ने, शीबों ने, बेटियां दफन करने वालों ने, सहरा में काफिला लूटने वालों ने, खतीजा के कर्ज पर पलने वालों ने, आए हाय अबू तालिब की तलवार से डरने वालों ने, हमला की जुल्फ़िकार से खौफ से कलमा पढ़ने वालों ने जब ये कहा था कि नबी मगा कोई बारिश नहीं रहा माज़अल्लाह। हाय हाय तवज्जो 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 फरमाएगा, बहुत अहम नुक्ते पर मैं अपनी तकरीर को ले आया। तो फिर आप सिर्फ कहें कुल कफा बिल्ला। जब काफिरों ने कहा ना मोहम्मद, नौजुबिल्ला, वो तो काफिर थे ना, डायरेक्ट मोहम्मद कहते थे। मेरे आका, मेरे रसूल अल्लाह, वही का तर्जमान, रहबर शरीयत, पैगाम हुर्रियत, दानाए सुबल, मौलाए कुल, इश्क़ अव्वल, हुस्न अव्वल, जिसका सांस चढ़ा हुआ है वो आस्ता बोले। जैसे नबी पे बोलना नहीं आता, मौला अली पे ना बोले, इसलिए कि नबी अली का भी मौला है। आय हाय मेरे नबी की शान के लिए यही काफी है कि जिसके सामने अली हाथ छोड़ कर गए, तू मेरा मौला है, उसे मुस्तफा कहते हैं। तो जो है जब मेरे नबी को काफिरों ने कहा ना, मक्का की जिस घर पे हाथ रखे, रिश्ता, दौलत, इक्तदार, बादशाहत, नहीं गौर की, सब कुछ देते हैं, बस हमारे वालों को बुरा ना कहे। ये काफिरों की पुरानी आदत है, लालच देकर अपने लोग बचाना, और नबी वालों की पुरानी आदत है डटे रहना। मेरे नबी ने कहा कुल कफा बिल्ला, खामोश, मुझ मोहम्मद के लिए अल्लाह काफी है।
तुम्हारी दौलत काफ़ी नहीं गौर किया। ये खामोशी नहीं, इंतहाई खूबसूरत तवज्जो है। अब आप क्या कहते हैं? अनअमता अलैहिम, जिन लोगों पर तूने अपना इनाम नाजिल किया। अब पहली नेमत है जनाब सैयदा, तो वो कौन सी नेमत है? जिस पर दीन मुकम्मल हुआ। हाँ, अब तक मैंने तुम्हें बिठाया खामोश, अब मैंने किसी को खामोश नहीं बैठने देना। फिर कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। मेरे हबीब कर दे वो ऐलान जिसका हमने आपको हुक्म दिया है, तबलीग कर दे मेरे हबीब। मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल जी महबूब कमाल, जो आगे रह गए उन्हें पीछे बुला, जो पीछे रह गए उन्हें आगे आने दे। तारीफ कहती बिलाल टीले पे खड़ा हुआ और कहा, हय्या अला खैरिल अमल। पता चला अली की विलायत शर नहीं खैर अमल है। आए है कोई है बोलने वाला? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कहने आपने हक अदा कर दिया। उकारे वालों रुक जाना। जो आगे रह गए उन्हें पीछे बुला, जो पीछे रह गए उन्हें दरमियान में बुला। बिलाल ने कहा, हय्या अला खैरिल अमल। गदीर नहीं पढ़ा। आज एक जुमला पढ़ने आया मेरे बच्चों। 12 साल हो गए मुझे उकाड़ा में आते हुए। 12 साल में मेरी कोई सीढ़ी उठा के देख लेना, मरकज से लेकर गलियों तक मैंने पढ़ा। मैंने ये जुमला नहीं कहा जो आज तोहफा देने लगा हूं, और तुम्हारे लिए भी नया है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, फलानों का मेंबर बनाओ, फलानों का, लंबा नहीं करूंगा, फलानों का मेंबर बन गया। ये अल्लाह का प्लान था। जैसा मैंने जुमला कह दिया, ये अल्लाह का प्लान था कि फलानों का मेंबर बन जाए। क्योंकि जब कन्वेंस रोक ली जाए, भाई हम जाते हैं ना बानियान के पास, 4-4 5 माइल से होते हैं, साईं मनु पढ़ाओ। बानी कहते किबला बैठे 4 बंदे मेंबर पर बैठे हैं, अभी आपको कैसे मेंबर दे दे? उनको उठा, यार मुझे नहीं पता, मुझे पढ़ाओ। मैंने 4 माइल से आगे पढ़ लिया। मैं मिसाल दे रहा हूँ, पक्का नहीं कर रहा। बानी कहता है अच्छा किबला नजदीक कहाँ पढ़ना है? दीपालपुर, वहां से पढ़ के आ जाएंगे। बिल्कुल आऊंगा। वो आराम से अपने किसी बंदे को भेजता है, कहता है जहाँ मौलवी की गाड़ी खड़ी है ना, 3-4 गाड़ियां साइड पे आगे खड़ी कर दो, चाबियां ला के मुझे दे दो। वो गाड़ियां खड़ी करके मौलवी की गाड़ी दरमियान में, चाबियां बानी के पास। अब जाके फिर भागा आता है कि बिला गड्डियां हटाओ, मैं मंगना है। वो ऐलान करता है, हजरात फला नंबर की गाड़ियों ने किबला की गाड़ियों को घेरा हुआ है, ये गाड़ियां हटा दो, उन्होंने जाना है। पता चला जिसके भागने का खतरा हो, मेरे अल्लाह जगह इन्हें उकाड़ा में जिनके भागने का खतरा हो, उसकी सवारी रोक लेते हैं। सारे सहाबा तो नहीं थे ना, कुछ तो मुनाफिक भी थे। अल्लाह ने कहा इनकी सवारियां रोको, आए हाय उतारो फलाने। रेत का सफर है, रेत का सफर है। जाएंगे तब जब ऊंट होगा, ऊंट तब होगा जब फलाना होगा। फलाना होगा तो फलाना जाएगा ना। मैंने जुमला कह दिया, भाई फलाना होगा तो फलाना जाएगा ना। सच क्या मिंबर। ये आज माशाल्लाह इमरान खान साहब 30 फुट की बुलंदी पे स्टेज लगाते हैं, नून लीग वाले 30 फुट की बुलंदी पे स्टेज लगाते हैं। ये किससे लिया तसव्वुर ऊंचा मिंबर लगाने का? ये आज का नहीं लगा, सबसे पहला ऊंचा मिंबर गदीर में लगा था। पता नहीं गुरबार करे कि नहीं, बलारों का मिंबर बन गया। नबी ने कहा यानी बेटा थोड़ी और आवाज खोल, आपके लाउड स्पीकर को नुकसान हो, जिम्मा मेरा, पैसे मैं दूंगा, पानी से नहीं लेना। अल्लाह मेरे बेटा मोहसिन कमरातम का ये तारीखी समय माता अपनी बात, मैंने बड़ी आपको जहमत दी, लेकिन मेरा मन पूरा हुआ है। आप फलानों का मेंबर बन गया। नबी ने कहा या अली मेरे करीब आ, शाजी अली करीब आ। अब बड़ा लतीफ जुमला कहूंगा उर्दू अदब का, या अली और करीब आ, अली और करीब, या अली और करीब आओ। अब मैं चेहरे देख रहा हूं कौन बोल रहा था, अली और करीब आ, या अली कुछ और करीब आओ, अली कुछ और करीब आ। बस अली इतने करीब आए कि गदीर में विलायत नबुव्वत से बिला फासिल हो गए। कोई तो है बोलने वाला, कोई तो है बोलने वाला। हाँ मेरा बेटा असगर बोला सलामत है, आज विलायत रिसालत से बिला फासिल हो गई। नबी ने बता दिया खबरदार कभी भी किसी जगह विलायत को नबुव्वत से जुदा ना, जुदा ना करना, न कलमे में, न आज़ान में, न
हाय 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 जी आप सलाम करो नारा हैदरी। मैं बंदा देख के अकीदा नहीं पढ़ता, जो मेरा है बस वही पढ़ता हूं। बुलाओ ना बुलाओ तुम्हारी मर्जी। अली करीब आखिरी जुमला बिला तशबीह मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल आखिरी जुमला कह रहा हूं। ऐसे हाथ उठाया, देखना मेरी तरफ, यूं बुलंद, इतना बुलंद किया। रजी साहब मुझे माफ कीजिएगा, मेरे प्यारे बेटा मुझे माफ कीजिएगा, अभी जुमला मिंबर पे ना आया हो तो बीबी सैयदा ज़हरा मुझे एक सांस ना लेने दे। इससे बड़ी बद्दुआ कोई नहीं है। आपके लिए मैं कभी बद्दुआ नहीं करता। एक बेटे का चेहरा कफन में देखूं, अगर ये जुमला अभी ना आया तो फिर शियो कभी परेशान ना हुआ करो। जिसे नबी बुलंद कर दे उसे सकीफा के टुकड़े पर पढ़ने वाले कैसे छोड़ा। हाय हाय कोई है जुमला समझने वाला, मौला तुम्हें सलामत रखे। नारा हैदरी, नबी ने हाथ उठाया, हाय हाय इतना बुलंद किया शादी, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि बगलों से नूर निकलने लगा। मेरे नबी ने हाथ बुलंद करके कहा मन कुन तुम मौला हो, ऐसे साथ इशारा किया, मन कुन तुम मौला हो, फहासा फहासा फहासा, ये मेरी मौला। मेरे पाक रसूल अल्लाह मजमे में और अली है ही कोई नहीं, फिर इशारा क्यों करे? क्या खामोश, मौलवी ने कल कह देना है अल्लाह का नाम भी अली है। नाना अल्लाह का नाम भी अली है। नबी ने कहा था जिसका मैं मौला उसका वो अली मौला। नबी ने कहा ना तस्लीम कारी नहीं करने दूंगा, जिसका मैं मौला उसका ये अली का जो है ना ये अली मौला। हाय 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 नारा हैदरी। भाई फिर मुजमा भी उकाड़े का होना चाहिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट फैसला कर रहा हूं गैरुल्लाह पर। सैयदा सलाम रखे, बस ये जुमला आज पहुंचाने आया था। मेरे पाक अल्लाह करामत अब्बास हैदरी के कलेजे को ताकत देना कि वह जुमला पूरी ताकत से पहुंचा सके। फजाइल का आखिरी जुमला है। ये हदीस शिया ने भी पढ़ी, सुन्नी ने भी पढ़ी, देवबंदी ने भी पढ़ी, अहले हदीस ने भी पढ़ी, मगर वो हदीस कोई नहीं पढ़ता जो पढ़नी चाहिए, जो आज करामत अब्बास हैदरी पढ़ने लगा है। जहां चाहो जब चाहो हवाला हाजिर है। जब मेरे नबी ने ऐलान कर दिया ना तो शुरफा आगे बढ़े, शुरफा आगे बढ़े और मेरे अली का हाथ चूमा, और एक बंदा आगे बढ़ा, नाम नहीं ले सकता चूंकि वजू से बैठा हूं। मेरे मौला ने जगा दे, उकारा में इतना वक्त नहीं हुआ चूंकि बावजूद बैठा हूं। आकर कहते हैं ये वो जुमला है जो आज करामत अब्बास हैदरी कहने आया है। मेरे अल्लाह शबरी के सीओ को बोलने की तौफीक देना, जो ना बोल सका उसे माफ कर देना, क्योंकि उकारा की गवाही गदीर की गवाही से आज मैं मिलाने लगा हूं। ये आगे बढ़कर मुनाफिक कहते हैं या अली मुबारक हो, आज से तू मेरा मौला बन गया। नबी ने कहा खामोश, मुनाफिकत ना कर, ये आज से मौला नहीं है, जब से मैं मौला तब से अरीबा। आए है कोई है बोलने वाला? और जियो मेरे बच्चों, जियो सलामत आओ। अब नारा सुनाओ ना। जी आप जिए सलामत है, मौला आपको सब्र के। उसने क्या कहा? खत्म, बस मैंने वादा किया था या अली मुबारक हो। एक एक चेहरे पे मेरी नजर है, जहां लोड शेडिंग हुई ना पकड़ लूंगा आखिर, और यहां तो सारे चेहरे खिले हुए हैं माशाल्लाह। आखिरी आदमी तक हर बंदा मुस्कुरा रहा है। पाक बीबी उकाड़ा वालों के गैरतमंद शिया सुन्नी मुसलमानों को सलामत रखे। जिसका मैं मौला उसका, ये नबी ने फरमाया। इसमें भी हिकमत थी, क्योंकि नबी को पता था सारे मुझे मौला नहीं मानेंगे, मुझे मानेंगे तो अली को मानेंगे ना। आज 1400 साल के बाद भी आमना के चांद की सदाकत देख लो। या अली कहते ही वो है जो पहले या रसूल अल्लाह। आए हाय कोई है बोलने वाला? आए हाय हाय अल्लाह अकबर। अली हक, सारे बोलो मेरे साथ, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली अली अली। नारा हैदरी। खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। जिसका मैं मौला उसका
नहीं जुमला तो मुझे अब कहना है, फायदा क्या मेरे आने का, आपके सुनने का। शाजिद दलील में दम ना हो तो यहां इज्जत कर लीजिएगा मौला के जाकिर समझ के, उधर के मुझे गाड़ी में जरूर कहिएगा कि करामत बाज छोटे भाइयों मगर इस जुमले में दम नहीं था। जब से मैं मौला, उसने क्या कहा, या अली मुबारक को आज से तू मेरा मौला बन गया। नबी ने कहा मुनाफिकत ना कर, जब से मैं मौला तब से अली मौला। मुनाफिक ने कहा आप कब से मौला, नबी ने कहा कब थी जब से मैं मौला। आय हाय तो जो है ना उस वक्त मेरे नबी के जुमले सुनो। आय करामत बाज़ी उखाड़ा में राज से पर्दा उठाने लगा, उस वक्त मेरे नबी का सुन, जब से वो ला इलाहा इल्लल्लाह है तब से मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, और जब से मैं रसूलुल्लाह हूँ तब से अली और वलीउल्लाह। आय हाय क्या कह रहे मैं थोड़ा आहिस्ता क्या हुआ था, आप सो गए थे। सलात पढ़िए मोहम्मद पर एक फजाइल के आखिरी बुलंद तर सलावत। मौला आपको सलामत रखे, जनाब सईद आपको सलामत। इधर अली के विलायत का ऐलान हुआ और अल्लाह ने फरमाया अल यौम अकमलकुम दीन, आज दीन मुकम्मल हो गया। नहीं गौर किया मैंने पाया, मैं सारी तकरीर कर गया, अशरा पढ़ता तो एक तरफ, आज दीन मुकम्मल हो गया। पता चला अल्लाह ने बता दिया दीन उसी का मुकम्मल है जिसमें अली है। बस लोगों ने गदीर के बदले मुस्तफ़ा की बेटी से ली, जो हाथ बुलंद किया था नबी ने, मुसलमानों ने इतने ही तमाचे अली की बेटियों को मारे। मौला आपको कोई गम ना दे, गम हुसैन के। आपको पता है मैं कभी बैठकर बेटा थोड़ा पीछे मसाइब नहीं पढ़ता, जिंदगी का कोई पता नहीं, अल्लाह जाने अगले साल कौन होगा कौन नहीं होगा। मौला आपको कोई बेटा इसको जरा टाइट कीजिएगा, गम ना दे गम हुसैन के अलावा। शबीए जुलजना नहीं है, मुझे पता है बड़ी गर्मी है, मगर मेरे बच्चों उकाड़ा में इतनी गर्मी नहीं है जितनी करबला में थी। हुसैन की मजलूम बेटी एक पाँव उठाती थी। बिस्मिल्लाह, जल्दी बेटा जल्दी करो, मौला तुम्हें कोई गम ना दे गम हुसैन के अलावा। जी बेटा, मैंने आपको बड़ी तवील जहमत दी, अपने नौजवानों को, अपनी बेटियों को, बहनों को मैंने बड़ी देर बिठाया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं चाहता था कुछ ना कुछ रज़ी साहब हक अदा हो जाए। कायनात में मेरे मुसलमान भाइयों, हर शहीद की अजमत को मेरा सलाम है, मगर कायनात में वाहिद शहीद हुसैन है जो बेवतन भी है बेकफन भी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जिनकी हाय निकल गई अल्लाह उनकी बेटियों का पर्दा सलामत किया, जो नहीं रो सका अल्लाह ने तौफीक अता। मेरी बेटियों रोना जरूर, मगर सरों से चादर ना उतरे, इसलिए कि बाप के मसाइब हो तो बेटी आज होती है। और मेरे बच्चों जनाब ज़हरा का वास्ता, सारी दुनिया शराब पियो, अली के शियो कभी तुम शराब ना पीना। इस शराब की वजह से माँ 4 घंटे खड़ी रही, अल्लाह अकबर। बेटी शाम के बाजार में 72 घंटे खड़ी रही। करबला अकबर की आजान से शुरू हुई, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बस ज्यादा नहीं, मुझे ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में मौला की शहादत मुकम्मल करनी है। जुलजना करीब है, हमारा टाइम है इंतजामिया से। हम रज़ी साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सफ़े मातम में भरपूर मदद फरमाई। अल्लाह ताला इनके बच्चों को सलामत रखे। मेरे बच्चों 2019 में असगर बेटा मैं अशरा पढ़ रहा था बाबा काजिम शाह के पास ठोकर न्याज में, शब आशूर थी। सैयद उठा दरमियान से मसाइब में, मुंह पे मातम करके कहता है करामत अब्बास आज बाप और बेटी का मसाइब का इकट्ठा जुमला पढ़, जनाब सकीना और मौला हुसैन पढ़। मैंने हाथ जोड़कर कहा बाबा नहीं पढ़ सकता। कहते क्यों? मैंने कहा आता है मगर डरता हूँ। कहते कोई एक जुमला कह दो। एक जुमला कहा, आप नेट पे देख लेना। उसके बाद मजलिस खत्म हो गई। मैंने कहा अजीब मुकद्दर है, बाप और बेटी का दोनों बेवतन दोनों बेकफन, जिसकी हाय नहीं निकली बड़ा अमीर है वो बंदा, दोनों बेवतन दोनों बेकफन। मेरे बच्चों दुआ करो झोली उठाकर, पालने वाले किसी बेटी के सामने उसका बाप कत्ल ना हो, अगर कत्ल हो जाए कातिल कमीना ना हो।
मौला तुम्हारी बेटियों का पर्दा सलामत है। वो पीछे तक मैं देख रहा हूँ बंदे मातम कर रहे हैं। मेरे बच्चों, मानता हूँ बड़ी गर्मी है, मगर करबला से ज्यादा मौसम खुश्क नहीं है। तुमने पानी पिया हुआ है, तुम अपने घरों में चले जाओ। आओ मैं पहला जुमला करूँ, इजाजत दीजिए मुझे। आप जैसे बुजुर्ग, करबला अकबर की आजान से शुरू हुई, ये खामोशी नहीं, करबला अकबर की आजान से शुरू हुई, हुसैन के सजदे पे खत्म हो गए। अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं। इस आजान और सजदे के दरमियान ज़हरा के घर से 72 जनाजे उठ गए, जिसे अब तक समझ नहीं आई। कई 18 साल के अकबर का जनाजा, मेरे भाई हैदर रिजवी, मौला तेरे दर्जात में बुलंदी फरमाए, 21 रमजान को 19 को उसका एक्सीडेंट हुआ, मेरे छोटे भाइयों की तरह था। जब जनाजा माँ के सामने गया, कहती मुझे चेहरा दिखाओ। माँ ने चेहरा देखते ही कहा अकबर का सदका, और मौला तुम्हारी हाय को कबूल करे। हमारी माए जवान बेटों को नहीं रोती, अली अकबर को रोती है। हमारे जख्मी होने वाले उनकी माए उनको नहीं रोती, कासिम के टुकड़ों को। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। इजाजत दीजिएगा, मैं फिर पढ़ रहा हूँ। करबला, निशान मुझे एक पानी का घूंट दो। करबला अकबर की आजान से, और मेरा बेटा जीते रहो। देखो छोटा सा बच्चा है, इसे कहते हैं हुसैन वारिस है। इस मेरे बच्चे ने तो देखा भी नहीं। मेरे बेटे, तूने ना जनाबे सकीना देखी, मेरे बच्चे ना तूने शहजादा अली असगर देखा, फिर इतनी चीखें मार के रो क्यों रहा है? ये जरूर कहेगा किबला देखा नहीं है, लेकिन बंधे हुए हाथों वाली बेटी ने दुआ की थी, मेरे बाबा मेरे जवान तेरे अकबर को रोएंगे, मेरे नौजवान तेरे अकबर को रोएंगे, मेरी कौम के बच्चे तेरी सकीना को। जज़ाकल्लाह। जिसका हाथ खुला हुआ है सीने पे मार के गए, आए बाप और बेटी। मैं खत्म कर रहा हूँ। अकबर की अजान से शुरू हुई, हुसैन के सजदे पे खत्म हो गई। चला गया कासिम, मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया, इसलिए आज तक पढ़ रहा हूँ कि शहादत पढ़ सकूं। चला गया कासिम, टुकड़े चुन लाया हुसैन। चला गया अब्बास, बाजू उठा लाया हुसैन। चला गया अली अकबर, बड़ी मुश्किल से उठा लाया हुसैन, जिसे अब तक रोना नहीं आया। चले गए ओनो मोहम्मद, उठा लाया हुसैन। जुमला एक ही कहूंगा, अगर आज गलियों में ना रो तो मैं बीबी का नौकर नहीं। मेरे पाक अल्लाह करामत बास दुआ करे, कभी मजलिस में ड्रामाबाजी करने की तौफीक ना देना। खुदा उन कमीनों को गालिब करे जो बीबी ज़ैनब के पाकीज़ा ज़िक्र में ड्रामेबाजी करते हैं। कोई रोए ना रोए, अदब से पढ़ूंगा। बस एक जुमला कह रहा हूँ, समझ आई तो तुम्हारी हाय उकाड़े की गलियों में गूंजेगी, ना समझ आई तो मुकद्दर। और मेरे बच्चों, जिसने सबका लाशा उठाया उसका जज़ाकल्लाह। और जी अल्लाह तुम्हारी बेटियों पर्दा सलामत रखे। हुसैन खेमे में आए, बस बेटा आप मोहसिन मौला अल्लाह जिंदगी दे, अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल करे। बड़ा आजादार है मेरा छोटा भाई, मुझे 10 दफा फोन किया, किबला मैंने बीबी की बेटे की ज़ियारत बरामद करानी है, जरूर आइएगा। ऐसे ही ना मोहसिन, मैंने वादा किया, अल्लाह ने जिंदगी दी, मैं जरूर आऊंगा। आजादारो खुश नसीब हो, ये इतने मेरे बच्चे हाय कर रहे हैं, किसी ने तमाशा तो नहीं मारा? मेरी बेटी हो इतने खुल कर रो रही हो, किसी ने पत्थर तो नहीं मारा? जो बंदा कहते हैं ना, अच्छा जितने मर्द बैठे हो अपनी आस्तीनें खोल के बैठो, चूँकि इमाम हुसैन की शहादत बड़ी मुश्किल शहादत है, मैं कभी अशरे के अलावा नहीं पढ़ता, लेकिन भाइयों का हुक्म है इसलिए कोशिश करता हूँ थोड़ी सी शहादत पढ़ लूँ। मेरे बच्चों कोशिश करना, किसी की नमाज कज़ा ना हो। मुझे कसम है बीबी की इज्जत की ऊंट के कजावे पर इस तरह से पड़ी है अली की बेटियों ने, नमाज कज़ा नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों खुदा की इज्जत की कसम, उस नमाज से तुम्हें क्या हासिल जिस नमाज में हुसैन नहीं है, जिस नमाज में हुसैन का बाबा नहीं है। मेरे बच्चे रो लेना, हुसैन तनहा रह गया, बहनों को आखिरी सलाम किया, अम्मा तुम की तैयारी कर, कल सुलझना चल। सुलझना की आवाज आई, मौला कैसे चलूं, ज़मीन पे तू बैठा है, जमीन पे तेरी बेटी सकीना पाँव पकड़ के कहती है, ओ ना ले जा, और मेरा बाबा प्यासा है, और मेरा बाबा के हौसला हौसला
जज़ाक अल्लाह। क्या मसाइब हो रहे। पाक बीबी आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। मेरे बच्चों कोशिश करना एक आंसू आ जाए। हुसैन मैदान में पहुंचे, मैमना को मैसरा पार, मैसरा को मैमना पार, मैमना को कल्बे लश्कर पार। हुसैन तय तय करता जा रहा है। कभी जाफर दाद देते हैं। मैं इसलिए आहिस्ता पढ़ रहा हूँ, आपने तो घरों तक रोना है इंशाल्लाह। मेरा बेटा अल्लाह हाज़िरी कबूल फरमाए। इधर हमजा दाद देते हैं, इधर अकील दाद देते हैं, इधर अली दाद देते हैं। या अचानक, अब मैं समझ गया, तुम भी समझो, हातफ गैबी से आवाज़ आई, या अय्युहन नफ्स मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना लौट आ अपने रब की तरफ। हुसैन ने तलवार मयान में डाली। जानते हो कौन सी आयत पढ़ी? इन्ना लिल्लाहि, और मैं कुर्बान जो मुकारा के गैरतमंदों पर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा जब मैं कहूँगा फिर सुलझना रहना, सिर्फ 2 मिनट दे दो। एक मरतबा तलवार डाली, शिमर कहते हैं मैं समझ गया अब हुसैन नहीं लड़ेगा। इसने भारतीय फौजों को वापस बुलाया। जिसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती वो बंदा सरों के मातम की तैयारी करे। जब इन्हें पता चल गया हुसैन नहीं लड़ेगा, जिसके हाथ में पत्थर था उसने हुसैन को पत्थर मारा, जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारी। जिसे कुछ नहीं मिला गरम रेत उठाकर हुसैन के जख्मों में फेंकना शुरू की। आवाज आई मां खुदाया, अरिया की आवाज आई, नाना जल्दी आ, मेरा भाई हुसैन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हौसला अज़ादारों। हुसैन जुलजना पर बैठे हुए थे और जख्मी हो गए। मैंने पढ़ दिया। ये खामोशी नहीं, ना 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 मैं अदाकार हूँ ना आप अदाकार हैं, ना मेरा सीना थका है। मैंने जल्दी की ना तो मैं शहादत नहीं पढ़ सकूँगा। मैंने 2 मिनट मांगे, इंशाअल्लाह ताला घरों तक आज रोते जाएंगे। कोई सैयद बैठे जी, बाबा जी इजाज़त है? जी साहब, जहाँ सैयद बैठे हो दादी का वास्ता ये रिवायत पढ़ने की इजाज़त दो। अकबर का लाशा उठाया ना हुसैन ने, हुसैन चीखे मार के नहीं रोया है। बहुत बड़ा जुमला, अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं। अब्बास के बाजू उठाए हैं ना, हुसैन चीखे मार के नहीं रोया है। कौनो मोहम्मद के लाशें उठाए मेरे बच्चों, हुसैन चीखे मार के नहीं रोया। बताऊं कब रोया है? टीले के पास चुप करके ज़हरा का लाल बैठा था। शहीद मोहसिन नकवी कहता है, कटे हुए अबरू, कटे हुए होंठ, दाएं की पसलियां बाएं, बाएं की पसलियां दाएं, बिखरी हुई जुल्फें, एक कबीना आगे बढ़ाओ। चूंकि सैयद नहीं हूं इशारा करूंगा, समझना आपने मेरे बच्चों। इस कुत्ते को तलवार नहीं मिली, इस हराम को नेज़ा नहीं मिला, इसने आगे बढ़कर वल्लैल की जुल्फों में हाथ रखा, सरकार के चेहरे पर अजर रसूल दिया। उस वक्त हुसैन की आवाज आई, अब्बास तेरा भाई आज यतीमा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आय करके रोज से समझ आई। तीरों की बरसात चली, कोई दाएं से तीर, कोई बाएं से तीर। खुदा लानत करे, सनान फिनांस में गैरत पर अभी हुसैन समझा नहीं था, इसने पहलू में नेज़ा मारा। करबला की मट्टी सरों के मातम का जोशिया बैठा है, करबला की मट्टी हुसैन के मुंह में आई। आवाज आई, अम्मा तेरा कर्जा उतर गया, अम्मा तेरा बेटा। हौसला, हौसला। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला। हुसैन ने जिंदगी की मोहलत नहीं मांगी, हुसैन ने प्यास के लिए पानी नहीं मांगा। हुसैन पहुंचा सजदे में, बस बड़ा गिरिया हो गया। हर जगह से रोने की आवाज आ रही, हर मेरा नौजवान रो रहे, हर मेरा बुजुर्ग रो रहे। अल्लाह बेटी का पर्दा सलामत रखे। बड़ी दिक्कत है मजलिस में, मगर ये जुमला ना मुझसे बर्दाश्त होगा ना तुझसे बर्दाश्त होगा। जी मेरा भाई दुआ मांग रहा है, बेशक ये मौका दुआ मांगने का है, लेकिन तो अपनी दुआ में हुसैन के जख्मों को ना भूलना। मेरे बच्चों आज जुमला कहने दो। जानते हो ना 21 रमजान भी गुजरा है ना, तो अली की शहादत बनाई है। हर साथी ने तुम्हें बताया है, अली के कातिल ने अली को एक सर मारी। ये खामोशी नहीं, अली के कातिल ने मेरे बच्चों अली को एक सर मारी। हुसैन के कातिल ने हुसैन को 13 ज़रबे मारी।
चढ़ाई नहीं है। मेरे उस्ताद उलामा सैयद खान गुलाबी बराकर चले जो शराब आगे से चढ़ाई जाती है, उस हराम साहब ने गर्दन की हड्डी तोड़कर, अल्लाह जाने जो अब तक नहीं समझा आए क्यों नहीं करा, गर्दन की हड्डी तोड़कर फातिमा के लाल का सर जुदा किया है, क्योंकि अली के कातिल को पता था पीछे अली के 18 बेटे खड़े हैं, शिमर को पता था हुसैन का कोई बारिश नहीं बचा। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, ये रिवायत न मेरी है न किसी अलामा की है, ये उस हरामजादे की अपनी रिवायत है जो यजीद के दरबार में सबसे बड़ा इनाम मांगता था। नहीं गौर किया, ये कुत्ता कहता है जब मैंने 5वीं ज़रब चलाई ना, ये खामोशी नहीं है ना ना, जब मैंने 5वीं ज़रब मारी तो मैंने देखा हुसैन के होंठ हिल रहे हैं, और मैं कुर्बान जो वो करने वाला तुम पर कहते मैंने कान लगाया कि शायद हुसैन बतवा कर है। हुसैन कह रहा था मेरे अल्लाह मेरी ज़ैनब जाने, उसका पर्दा जाने, जो बंदा अब तक नहीं रो सका। कहते जब मैंने 6ठी ज़रब मारी 2 छोटे छोटे हाथ आए, मैंने कहा हुसैन बेटी को क्यों बुलाया, कहा कभी ने बेटियों को बुलाया नहीं जाता। आखिरी जुमला करने लगा हूं मैं, ईरान सुल्ताना का मातम की तैयारी कर लेना। इसने सैयदा की पाकीज़ा बेटी को अजर रसूल दिया, सकीना फरात की तरफ भागी, जिसके घर में एक बेटी है वो सरों का मातम शुरू करे। कबीले ने 13 ज़रबों के बाद शफीर का सर उतारा, घोड़े पर बैठा, और मेरे बच्चों जिधर जिधर घोड़ा भागा 4 साल की सकीना पीछे भाग के कहती है और ना उठा, तुझे उठाना नहीं आता। भगवान एक जरूरी ऐलान सुनिए, आज उखाड़ा में उस हुसैन का शबीह सुलझना आ रहा है जिसको शिमा ने 13 ज़रबों के साथ करबला में कत्ल कर दिया, जिसकी बेटियां रो रो के कहती थी आए मेरा गरीब बाबा, आए मेरा अल्लाह नासी बाबा, ये उसका सुलझना है जिसकी बेटियां करबला से लेकर शाम तक कहती थी और कोई मुझे मेरे पापा का पूछा दो। आए हुसैन उजड़ गई सकीना, मातमे हुसैन, मातमे हुसैन। नीचे चिल्ला ना।